Dear students, welcome to my English literature class of grade 6th. Students, before commencing the chapter, first of all, we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, let's start. Come to the page number 43, chapter number 4. I want to be an environmentalist. Environmentalist means a person who just want to protect the environment, who just want to incline himself in protecting the environmental issues. Let's start with the first paragraph. First of all, choose your cause. What are the causes which usually affects the environment? Just engage yourself in detecting the cause, in discovering the cause. What are the causes which are responsible for the environmental issues? Discover what you are passionate about and do some research. Passionate means having strong feelings. Just discover what you are passionate about and do some research. There are a variety of environmental issues that will interest you. So there are so many environmental issues in today's time. Protection of endangered species. So we need to protect the species, and at this time the species are endangered. So we have to protect those endangered species, avoiding wastage of natural resources. We have to avoid the wastage. हमें जो natural resources है उनकी जो wastage हो रही है वो भी हमें उनको avoid करना चाहिए. Protecting forests, जो forest है उनको protect करना चाहिए, उनको save करना चाहिए. जो trees हैं उनको protect करना चाहिए. उनकी जो consumption है, cutting of the trees should be less so that we can make the environmental eco-friendly. And encouraging recycling. So we have to encourage the process of recycling. हमें बार बार recycling करनी चाहिए. जो waste materials हैं उनको recycle करना चाहिए, reuse करना चाहिए. Are some of the causes. Environmentalist support, ये कुछ causes हैं जिनको हम सपोर्ट कर सकते हैं. Learn about environmental issues in your own locality and take part in solving them. First of all, just detect the environmental issues in your locality and just take the part in solving them. फिर उसमें पहले डिटेक्ट करो आपके जो एरिया में environmental issues है और उनमें पार्ट लो. Secondly, choose your talent. Do you like to communicate with people? क्या आप किसी के साथ कम्युनिकेट पसंद करते हो? किसी से बात करना, कम्युनिकेट करना दूसरे लोगों से. डू यू प्रेफर राइटिंग टू स्पीकिंग? क्या आप प्रेफर करते हो राइटिंग टू स्पीकिंग? आर यू समवन हु लाइक्स बीइंग आउट इन नेचर? क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जो नेचर में जाना पसंद करता है, जिसको नेचर बहुत पसंद है? कैन यू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट? क्या तुम इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो? सिंग, बेक, पेंट और जंगल. Your unique talents contribute to bringing attention. आपके जो unique talents है वो आपको contribute करते हैं आपकी attention को. And raising money for environmental efforts. Consider getting involved in events. आप अपने आप को consider करो उन events में involve हो. Fundraisers and campaigns for conservation issues. अपने आप को इन इवेंट्स में ऑर्गेनाइज करो मनी को रेज करने के लिए. थर्ड पॉइंट, एजुकेट योरसेल्फ देन एजुकेट अदर्स. अपने आप को एजुकेट करो और दूसरों को एजुकेट करो. नो हाउ, कैसे द अर्थ वर्क्स, जो अर्थ है वो काम करती है.
एंड हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अफेक्टिंग इट। जो अर्थ है वो काम करती है, उससे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट होती है। जैसे ही अर्थ वर्क करती है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो भी अफेक्ट होती है। रीड मैगजीन्स, मैगजीन्स रीड करो अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। जस्ट रीड द मैगजीन्स, बुक्स एंड आर्टिकल्स, सम सॉर्ट ऑफ गुड बुक्स रीड करो, एंड उसमें जो गुड आर्टिकल्स हैं विच यूजली गिव्स यू लॉट ऑफ नॉलेज, जस्ट रीड दैम। वॉच डॉक्यूमेंट्रीज and browse websites relating to the nature. Just search it on the internet related to the nature. Just make a search on the internet related to the nature. Nature के related search मारो internet के ऊपर. You will access lot of knowledge from it. So many things which are related to the nature, you can gather it from the internet. शेयर वॉट यू लर्न विद फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स। शेयर करो दूसरों से जो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ से आपने लर्न किया, जो आपने अपने नेबर्स से लर्न किया, उसको शेयर करो। यूज़ सोशल मीडिया टू स्प्रेड द वर्ड एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़। सोशल मीडिया को यूज़ करो उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको डिसेमिनेट करने के लिए, द वर्ड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज़। So students, there are various sources of media through which we can disseminate the information everywhere across each and every part of the world. So this time there are so many technical things through which we can spread the information related to the environmental issues, and we can also gather the information how to protect our environment from the hazardous things. Fourth point is get connected. Get in touch with other people or experts who are concerned about the same environmental issues as you. तो उन लोगों के साथ कनेक्ट करो, उन लोगों के साथ जिनकी सेम प्रॉब्लम है environmental issue की। Getting connected with people is an important step on the way to becoming environmentalist. ऐसे लोगों के साथ जो कनेक्शन करना, जिनकी लोकेलिटी में जिनको प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल से, जिनकी सेम प्रॉब्लम है आप जैसे, तो वो बहुत अच्छा होएगा, बेटर होएगा। तो ये एक अच्छा वे है आपको इन्वायरमेंटलिस्ट बनने का। कंडक्ट searches on the web for people and organizations who share your thoughts and concerns. ऐसे सर्च लगाओ वेब के ऊपर, जस्ट सर्च इट ऑन द वेब। उन लोगों को सर्च करो वेब के ऊपर, इंटरनेट के थ्रू उन ऑर्गेनाइजेशंस को सर्च करो वो यूजली जस्ट शेयर्स योर थॉट्स, जो आपके शेयर्स करते हैं थॉट्स, आपके क्या जो कंसर्न्स है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग। आप ऐसे लोगों को सर्च करो जो आपके थॉट्स और व्यूज़ को शेयर करते हैं। Join organizations, groups and websites that promotes your cause. वो वाली ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स को ज्वाइन करो और वेबसाइट्स को जो आपके कॉज को प्रमोट करते हैं, और क्रिएट योर ओन ग्रुप, और अपने ग्रुप को, आपके ग्रुप को क्रिएट करते हैं अपने ग्रुप में। लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड हेल्प मेक अ bigger impact by joining forces with other people who share your passion for environmentalism. तो वो कहता कि जो इसका इम्पैक्ट है, एक्सपर्ट से लर्न करो, उनसे हेल्प लो। इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मीन्स अफेक्ट, इसका जो अफेक्ट है वो बहुत अच्छा पड़ता है बाय ज्वाइनिंग फोर्सेस। जब हम ऐसी एक्सपर्ट फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो इसका जो अफेक्ट है, रिजल्ट है, वो बहुत अच्छा होता है। विद द अदर पीपल हु शेयर योर पैशन इन्वायरमेंटलिज्म। तो ऐसे लोगों को ज्वाइन करो ताकि आपको जो रिज़ल्ट है इसका अच्छा मिले, जो आपके जो पैशन है इन्वायरमेंटलिज्म बनने का। पिक अप लिटर वेयर एवर यू गो। Litter means rubbish lying in open spaces. Just pick up the litter where you go. जहाँ पे आप जाते हो, just pick up the litter, and whenever you go, जब भी आप जाते हो, litter not only dirties roads, जो litter है वो सिर्फ
रोड्स को ही डर्टी नहीं करती, पार्क्स एंड पब्लिक स्पेसेस, इट आल्सो पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट। ये सिर्फ रोड्स, पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस को ही गंदा नहीं करती, ये इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करती है। इट हार्म्स वाइल्ड लाइफ दैट कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद इट, ये वाइल्ड लाइफ को भी हार्म करती है जो उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। यू कैन आल्सो ज्वाइन और ऑर्गेनाइज ग्रुप्स टू क्लीन अप लार्ज एरियाज। तो आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे ग्रुप्स को जो लार्ज एरियाज को क्लीन अप करते हैं, जो उसमें उसको क्लीन अप करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें हमारी जो सराउंडिंग्स होती है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो आपको ऐसे ग्रुप्स में इन्वॉल्व होना है जो उन सराउंडिंग्स को क्लीन करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लोकेलिटीज़ होती है, जैसे आपके घर के पास भी होंगी, कुछ कई लोकेलिटीज़ ऐसी होती है जिनमें लोग ओपनली जो वेस्ट मटेरियल है वो ऐसे ही गिरा देते हैं। दे आर नॉट पुटिंग इट इनटू द डस्टबिन, they are not throwing their waste material in the dustbin and out of the far away places, so वो ऐसे ही they just put it on the roads। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे इन्वायरमेंटल को ख़राब करती हैं। ये सिर्फ रोड्स को ही डर्टी नहीं करती, पार्क्स को ही डर्टी नहीं करती, पब्लिक प्लेसेस को ही नहीं डर्टी करती, ये इन्वायरमेंटल को भी ख़राब करती हैं। तो हमें इनमें पार्ट लेना चाहिए, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको नीट एंड क्लीन करना चाहिए, हमारी सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड दीज 5 पॉइंट्स। इन दी नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द नेक्स्ट पॉइंट्स फ्रॉम 6 to 10। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।